Guys, please confirm if I'm clearly audible and screen visible. Just ping me in the chat box. Verify. Okay. I see most of you have, okay, mostly everybody is there. Verify. ठीक है जी. Yesterday we were talking about CRISP-DM framework. CRISP-DM framework. जस्ट क्विकली रिकॉल करेंगे क्यों जरूरत पड़ गई थी इसकी. बताएगा कोई जरा जल्दी जल्दी से. जस्ट इन द चैट बॉक्स. थिंक क्विकली. क्या क्या ओपिनियन आ रहा है सब लोगों को. जस्ट इमेजिन इंटरव्यू में क्वेश्चन हो गया तो किस तरह से आर्टिकुलेट करोगे आंसर अपना. जस्ट अ वन लाइनर. A one-liner would be the best. One word would be even better. Mhm. Reason being that being analyst, you may encounter data from any domain, right? You may have a pharmaceutical background, you are dealing with data of automobiles, or maybe vice versa, right? So just to give you a broad guideline, there is a proper framework, we call it CRISP-DM. Perhaps I skipped the definition of CRISP-DM, why we are calling it like that. CRISP-DM is this kind of thing. Just give me a moment, guys. Just give me a moment. Oh, well, I'm back again. CRISP-DM framework. It stands for Cross Industry Standard Process for Data Mining. I wonder why didn't you ask? Nobody asked me that. Why we are calling it, giving this framework such an absurd name. ठीक है जी. लिखूं भेजूं कहीं. Cross Industry Standard Process for Data Mining. ठीक है जी. इसलिए बोल रहे हैं क्रिस्प डीएम. Yesterday we looked at a few aspects of CRISP-DM framework. We start off with business understanding, right? We talked in ample detail about this part. Within business understanding, we figured out there are two parts.
One we are calling tangibles, officially called the problem statement. ठीक है? Problem statement is the official word. I prefer to call it tangible because बताया था मैंने कल अपनी कंपनी की पेमेंट रुकवाई थी ना मैंने एक जगह जाके, यू रिमेम्बर दैट? टैंजिबल्स इंपॉर्टेंट है. द अनदर पार्ट इज intangibles, officially called business nuances. Very fine, even that's pretty much taken care of. Then we moved on to next step. Once I understand the industry, जिस इंडस्ट्री से ये डेटा आया है वो बिजनेस कैसा काम करता है, what are the tips and tricks and the dark secrets of this industry, मैं थोड़ा सा समझने का कोशिश करता हूँ चीज़ों को. ठीक है? Not trying to do PhD level work, but yes, थोड़ा सा रिसर्च मेरे को करना चाहिए. Then we move on to what is the data at hand. करेक्ट, ये भी बात कर चुके हैं हम कल, कर चुके हैं, कल दिखाया था तुम्हें. कितना बढ़िया एनालिसिस कर रहे हो आप लोग बिना डेटा देखे. So yeah, it is taking you in wrong direction if you don't understand the data fully. So it could have various sources. We got to file the data description file. Yeah, we call it data dictionary. Usually, every data is coupled by a data description file, uh, which we refer to as data dictionary. In real life scenarios, you will be generally assigned a point of contact at your client's end. So that can be another source to understand data and probe around. And last but not the least, ये भी हमने बात की थी, research by yourself. You are living in Google Edge, so not audible. Can somebody confirm if I am not audible? Okay. Nagendra and Shekhar, it seems I'm audible to all others, so you can drop off and join back. Okay. Maybe it is connection trouble at your. Okay. Next in line comes is then something important kicks in, and that is कहीं सुना ही है, लिखा पढ़ा देखा होगी. If you see the job descriptions somewhere on LinkedIn, maybe Monster for data analysis, and yes, you will come across this term. We want expert at EDA, EDA mandatory, you know, hands-on expert at EDA. It is that important a part. It stands for exploratory data analysis. Why the hell is this so important? I can tell you that more than 60%, 70% of the time of entire project goes into this EDA part. Really, honestly. एनी पर्टिकुलर रीजन कोई बता सकता है क्या क्या है इसमें, इतना क्या इंतजाम है इसमें?
that everybody is asking for EDA, and I am also trying to convince you that it is very important part. Remember this cycle? Remember this cycle. EDA means this plus this plus this. That's EDA, and a few more things. तो देख लो बचता ही क्या है। अगर इस सबको EDA बोल रहा हूँ तो बचा ही क्या? हाँ, ये बचा है छोटा सा, विशेष कुछ बचा नहीं। नागेंद्र, आर इज टूल। इस टूल से आप कर रहे हो, आप कर क्या रहे हो डेटा के साथ? दैट इज EDA। वो आप आर से करो या पाइथन से करो, और मे बी टूल से, टैबल्यू से करो, और फॉर दैट मैटर यू कैन डू इट बाय एक्सेल इटसेल्फ, बहुत सारी चीज़ें। विल सी, जस्ट लेट्स सी। तो अभी इट इज नॉट टूल स्पेसिफिक, इट इज क्रिस्प DM, इट इज समथिंग how to do analysis of a data set from any particular industry which you may or may not be aware of. पार्ट्स क्या क्या आ जाते हैं इसके? एक तो तुम्हें पता ही है, बहुत दिनों से बात हो रही है इसकी, इनफैक्ट कर भी रहे हो आप लोग, ये तो आप सीख गए हो। यस के नहीं? यस के नहीं, क्या कह रहा हूँ? ये ज़्यादा अंग्रेजी ना, इसीलिए ठीक नहीं है। आई मीन टू यस और नो। अब तो सीख गए हो, आ गया है डेटा क्लीन करना। राइट, यू नो द होल गैमेट ऑफ प्रोसेस, क्या क्या चेक करते हो इसमें? मिसिंग वैल्यूज, डुप्लीकेट्स, अपर लोअर केस मिसमैच हो सकता है, करेक्ट, फॉर्मेटिंग का इशू हो सकता है, डेटा टाइप का मिसमैच हो सकता है। हाँ, कुछ भी, जो भी डेटा में आ रहा है आपका, राइट, एवरीथिंग, एवरी दैट काइंड ऑफ थिंग, दैट्स बेसिकली डेटा क्लीन। Then we come on to, we call it, and now this is something which I would want you to tell me. I have written two terms, data cleaning and data manipulation. How are the two different? Can you think of something? How are these two terms different? Okay. और किसी का कोई ओपिनियन? Yes, finally, Vatsal coming up with exact words. बताता हूँ मोनिका, let's, okay, I'll give you an example. Data cleaning, you know the thing, you have to clean up the data. Then there is, say, data manipulation. For example, there is an employee table, एक एम्प्लॉयज का डेटा है, किसी कंपनी के एम्प्लॉयज का डेटा है, एंड दे आर रिकॉर्डिंग कॉलम, वो अपने एम्प्लॉयज का रिकॉर्डिंग में क्या रखते हैं कॉलम से? DOB, डेट ऑफ बर्थ। बीइंग एन एनालिस्ट मैं क्या करूं इसका?
कुछ एम्प्लॉयज का डेट ऑफ बर्थ है, फॉर्मेट भी सही है, बिल्कुल सही फॉर्मेट है सबका, DD MM YY, जैसा हमें चाहिए होता है, बिल्कुल ठीक बात। प्रॉब्लम क्या है? एज सच मेरे किसी काम का नहीं। अगर मैं इसको इसी फॉर्म में रखे रखूँ DD MM YY, एनालिसिस, डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ एनालिसिस, इट मे नॉट बी यूजफुल फॉर मी। मेरे यूजफुल ये कब होगा? अगर मैं इससे डिराइव कर लूँ एम्प्लॉय एज, अब शायद ये कुछ काम आ जाए। सपोज मैं आपसे बोलूँ, सपोज जस्ट इमेजिनरी केस, देयर इज द डेटा ऑफ द अमेज़न, एक अमेज़न का टेबल है, ठीक है? वो अपने कस्टमर्स का क्या रिकॉर्ड कर रहे हैं? मैनी थिंग्स, से एड्रेस, हाँ, हाँ, डिलीवरी के लिए एड्रेस रखते होंगे। एड्रेस कैसे होते हैं लोगों के? एड्रेस कैसे होते हैं लोगों के? या फ्लैट नंबर, मे बी द सोसाइटी नेम, मे बी लोकेलिटी, राइट? May be something, a landmark they have given, right? Then city, then state, then pin, right? इसी तरह की बात होती है। Now think about it. एड्रेस कॉलम में ये सारी बातें लिखी हुई हैं, 1000 कस्टमर्स की। मेरे किस काम का है ये? एज लॉन्ग एज सी, हर कस्टमर के लिए, अनलेस एंड until they are relatives or maybe they are living in the same address, which would be a very okay, नॉट इम्पॉसिबल, बट इट वुड बी अ रेयर केस। यूजुअली लोगों के एड्रेस अलग अलग आ रहे होंगे, जितने कस्टमर्स उतने एड्रेस। तो कॉलम बिल्कुल क्लीन है, डेटा क्लीन ही है, डेटा में कोई कमी नहीं है, डेटा क्लीन है, एज सच मेरे काम नहीं है। अगर मैं इससे, थिंक अबाउट इट, अगर मैं इससे किसी तरह एक नया कॉलम बना लूँ, सिटी, जहाँ पे कस्टमर्स की सिटी दिखाएगा वो, अब कुछ काम आ सकता है? शायद अब कुछ काम आ जाएगा। यस, नाउ आई कैन सी द कलेक्टिव बिहेवियर, और मैं शायद ये एनालिसिस कर पाऊँ कि हाँ, ओके, दिल्ली के कस्टमर्स क्या डिफरेंट बिहेव करते हैं लखनऊ के कस्टमर्स से, एंड लखनऊ के कस्टमर्स कैसा बिहेव कर रहे हैं रादर देन इंदौर के कस्टमर्स से। आई होप आई एम मेकिंग द पॉइंट क्लियर। समझ आ रहा है? डेटा क्लीन ही है, अब उसमें कुछ क्लीन करने के लिए नहीं बचा है, लेकिन एज सच मेरे काम नहीं आ रहा था, तो मैं एग्जिस्टिंग डेटा से कुछ नया डेटा डिराइव कर ले रहा हूँ। ठीक है? देर आर सम नेम्स टू इट, आपको अगर कहीं देखने के लिए मिल जाए तो घबराना हो। डेराइव्ड मैट्रिक्स, कुछ लोग इसको ऐसा बोलते हैं। क्या मतलब हुआ? वही हुआ जो अभी किया था हमने। एड्रेस का कॉलम था बना बनाया, उसमें से मैंने एक नया मैट्रिक डिराइव कर लिया, विच इज सिटी। फीचर इंजीनियरिंग, कोई बोले कि फीचर इंजीनियरिंग करता हूँ मैं, क्या मतलब है? क्या कह रहा है वो कुछ नहीं कह रहा है। दैट इडियट इज जस्ट ट्राइंग टू साउंड प्रोफेशनल एंड इंटेलिजेंट बाय यूजिंग दीज jargons। रिमेंबर, बचपन में वो न्यूमेरिकल पढ़ा था, लेंथ गिवन हो और ब्रेड्थ गिवन हो और हाइट गिवन हो, हाँ, क्या बनाते थे इससे? अबे एरिया, क्या बताऊँ, ज्यादा ही बुरी हालत में हो तुम, मुझसे भी बुरा हाल है तुम्हारा तो।
ठीक है, समझ गए। नहीं नहीं, मजाक कर रहा हूँ मैं, मेरी हालत कभी बुरी नहीं थी वे। आई डोंट थिंक आई हैव टोल्ड यू, बट इन माय बैच आई वाज द गोल्ड मेडलिस्ट इन मैथ्स, नॉट इन अदर सब्जेक्ट बट फॉर मैथ्स। ठीक है, तो कोई आपसे कह रहा है कि फीचर इंजीनियरिंग कर दी मैंने, क्या किया उसने? कुछ नहीं किया। उसे लेंथ ब्रेड्थ और हाइट गिवन थी, तो उसने एक नया कॉलम कैलकुलेट कर दिया वॉल्यूम। उसी को कह रहा है दैट आई हैव इंजीनियर्ड अ न्यू फीचर, फ्रॉम एग्जिस्टिंग फीचर्स आई हैव क्रिएटेड अ न्यू फीचर। ठीक है, कोई कमाल नहीं किया, सिंपल सी चीज है। टर्म्स बहुत बड़े बड़े हैं। ठीक है, चलो आगे। Another step is something called univariate analysis. Now, what's univariate analysis? As the name suggests, ये कहाँ पर काम आ जाता है? हाँ, जो उसका नाम है यूनिवेरिएट। रिमेंबर दैट स्पार्क फंड्स असाइनमेंट, जो आप में से हम यू नो आधे लोगों ने तो वैसे ही छोड़ दिया था कि ये नहीं होता दिख रहा। डेटा देख के ही हिम्मत हार गए थे। हाँ जी, बताएगा कोई क्या हुआ था? क्या हो गया था? क्या प्रॉब्लम आया था? मैं बताता हूँ क्या प्रॉब्लम आया था, अगर और कोई नहीं बता रहा। यस एग्जैक्टली। आप लोगों ने डेटा देखा एंड सडनली यू सॉ दैट ये अजीब सा फॉर्मेट में डेटा है, एक टेक्स्ट फाइल है कि ये है और प्रॉब्लम स्टेटमेंट कुछ कह रहा है, और मेरे को तो वो फंक्शन भी याद नहीं आ रहा क्या कराया था। ऐसा ही हुआ था। बताते रहो ना। हाँ, बताते रहे ना, जल्दी जल्दी। यस यस करके बेशर्मो की तरह। आई ट्रिक्ड यू अगेन। Okay, on a serious note, what happened actually? Data as a whole is overwhelming. It is exactly. Suppose I give you a data of 1 million records, it has 50 columns, and you are not very handy with the industry also. तुम्हें ये भी नहीं पता कि ये डेटा, सपोज मैं बोलूँ आपको डेटा दे दूँ मैंने इंश्योरेंस कंपनीज का उठाकर। So if you are not very much equipped with the knowledge of how insurance domain works, सही बात है, टप्पा नहीं खाएगा, कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि ये क्या चल रहा होगा डेटा में। सो दैट्स वेयर हम कह रहे हैं कि यूनिवेरिएट एनालिसिस, दैट समवेयर यूनिवेरिएट एनालिसिस कम्स इन हैंडी। घबराओ मत, डेटा को लाओ अपने टूल में, एक एक वेरिएबल उठा के देखना शुरू करो। पहला वेरिएबल, पहले समझा हमने कि ये कैटेगोरिकल है कि कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस है तो देख लो इसकी मिनिमम मैक्सिमम कितनी रेंज में ये वेरी कर रहा है, इसका मीन कितना है, मीडियन कितना है, थोड़ा सा समझ आया। राइट, एनोमली जो बड़ी बड़ी आपने रिमूव कर ली थी, मिसिंग वैल्यू दिस एंड दैट, चलो वो तो ठीक हो गई, लेकिन इनवैलिड वैल्यू, सपोज इनवैलिड वैल्यू रह गई होगी, वो दिखेगी थोड़ी ऐसे। इनवैलिड वैल्यू लाइक नेगेटिव एज, इनवैलिड वैल्यू लाइक
किसी कार का वेट, जो कार्स वाला डेटा सेट आप कर रहे थे, कार का वेट किसी का आ रहा हो 0, सही बात है, इनवैलिड हुई ना वैल्यू, ऐसी कोई कार नहीं हो सकती, ऐसा कोई कस्टमर नहीं हो सकता जिसकी एज नेगेटिव हो। तो यूनिवेरिएट एनालिसिस हेल्प्स इन दीज थिंग्स। एक एक कॉलम उठा करके देखना शुरू किया और उसको एनालिसिस करके देख रहे हैं। तो थोड़ी थोड़ी कहानी शायद हम जब, अब चाहे मेरा डेटा कितना भी मैसिव डेटा क्यों ना मैं डील कर रहा हूँ, आज नहीं तो कल मैं उसके सारे कॉलम्स चेक कर लूंगा वन बाय वन, और मेरे को एक प्रॉपर सा थोड़ा सा आइडिया लग जाए। ठीक है, तो अगर और कुछ समझ नहीं आता, स्टार्ट ऑफ विद यूनिवेरिएट। हाँ जी, यूनिवेरिएट के बाद और क्या होता है? हाँ, यही तो सीखा है हमने पूरी यूनिवर्सिटी में। यूनि के बाद बाई आता है। हाँ, यूनिवेरिएट होता है तो अगला बाईवेरिएट ही होता होगा। बाईवेरिएट यानी नहीं नहीं, वहां नहीं जा रहे अभी शेखर, अभी स्टे विद मी, स्टे विद मी। तो लोग एकदम से ही एक्साइट हो जाते हो। हाँ जी, बाईवेरिएट मीन्स टू वेरिएबल एट ए टाइम, बट कौन से टू वेरिएबल्स? विच टू वेरिएबल्स? भाई यूनिवेरिएट में सिंपल था, मेरे पास डेटा आया, मैंने उठाया फर्स्ट कॉलम, देख लिया थोड़ा थोड़ा सा, फिर सेकंड कॉलम, फिर थर्ड कॉलम, एंड आई एम डूइंग इट लाइक दैट। यस एग्जैक्टली, एग्जैक्टली आई वांट। यूजुअली जब भी आप किसी डेटा को डील कर रहे हैं, देयर विल बी अ वेरिएबल ऑफ योर इंटरेस्ट एंड वी कॉल इट टारगेट वेरिएबल। ठीक है, फॉर एग्जांपल, हाँ जी, टाइटैनिक डेटा में कौन सा था हमारा वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट, जिसे हम जानना चाह रहे थे कि, हाँ, करेक्ट, हम देखना चाह रहे थे पैसेंजर का सर्वाइवल किन चीजों पर डिपेंड करा है। आपका कार्स वाला डेटा सेट हो तो क्या होगा वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट? आने लगा समझ, थोड़ा थोड़ा सा। हाँ, मैं ये देखने में बड़ा इंटरेस्ट रहेगा मेरे को कि कार का प्राइस किन किन चीजों पर वेरी करेगा, किन किन चीजों से वेरी होगा। सो बाई वेरिएट में हम क्या कह रहे हैं, आई वॉन्ट टू सी माई टारगेट वेरिएबल के इस पर उस दूसरे वेरिएबल का इम्पैक्ट क्या आता है। वो दूसरा वेरिएबल कौन? यही वाला जो हमने शुरू किया था पहले कॉलम से लेकर, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, और उससे मैं क्या देखता जा रहा हूँ कि मेरे टारगेट वेरिएबल पे उसका इम्पैक्ट कैसे कैसे आता है। ठीक है, और क्या करोगे जी इसमें? हाँ, ये भी तो आएगा। ये यूनिवेरिएट बाईवेरिएट करोगे कैसे? माना टेबुलर फॉर्म में कर भी सकते हो, डीप्लायर से समराइज ग्रुप बाय कुछ ना कुछ कर कर आके, हो सकता है तुम कुछ देख लो, बाईवेरिएट भी देख लो। तो पहली बात तो तुम्हें खुद रिकॉग्नाइज करना थोड़ा सा दिक्कत होगी, टेबल फॉर्म में लाना पड़ेगा एनालिसिस करके, और गलती से अगर कर लिया तो समझाओगे कैसे? उसे कैसे दिखाओगे जैसे कोडिंग नहीं आती? तुम्हारा क्लाइंट तो वो है, उसे ना पाइथन पता है ना आर पता है। आई होप यू आर गेटिंग इट।
That's where this is important. Visualization. आप सीखेंगे टैब्यू लास्ट में बिल्कुल जाकर के. टैब्यू एग्जिस्ट ओनली एंड ओनली फॉर विजुअलाइजेशन पर्पस. एनालिसिस आई मीन ठीक है, बहुत बेसिक सा एनालिसिस हो सकता है उसमें, लेकिन बहुत ज़्यादा उसमें नहीं जाता. Just to create the dashboards, just to create just to put the story together. ठीक है, got the gist. Also, one thing to pay attention to is, you see, I have tried to create these arrows. I have not numbered them on purpose because 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 broadly you may follow this sequence, but any day EDA cannot be done in a particular sequence. It can have many iterations. It can depend on data as well. पता लगा आपने डेटा क्लीन कर लिया था, लेकिन जब आप यूनिवेरिएट करने पहुंचे तो आपको पता चला कि कुछ रह गया है, इनवैलिड वैल्यूज रह गई. ठीक है जी. पता लगा आप सब चीजें करते हुए आ रहे थे, और व्हेन यू डिड बाईवेरिएट एनालिसिस, तो आपने देखा कि इस कॉलम को किसी भी कॉलम को, देयर वाज अ कॉलम C1, इससे टारगेट वेरिएबल पे इतना अच्छे से इम्पैक्ट नहीं दिखा पा रहा हूँ, लेकिन इस कॉलम 1 से अगर मैं कुछ और डिराइव कर लूँ तो शायद टारगेट वेरिएबल को ज़्यादा अच्छा एक्सप्लेन कर पाए. सो अगेन यू आर बैक. हो सकता है जब विजुअलाइजेशन कर रहे हो, अगेन यू सी समथिंग दैट इट हैज नॉट बीन टेकन केयर ऑफ. अगेन यू आर बैक. ठीक है जी. सो दैट्स मोर और लेस ईडीए. अभी देख के लग रहा होगा ना कितना काम है, इसीलिए ज़्यादा टाइम लेता है. यू विल ऑल्सो, आई थिंक यू विल एग्री टू मी इन दिस ऑल्सो, दैट ईडीए ही जान है किसी भी एनालिसिस का. इसके बाद कुछ खास बचता नहीं है, इसके बाद सिर्फ मॉडल बनाना रह जाता है. देयर इज अ सेइंग इन डेटा साइंस, गार्बेज इन गार्बेज आउट. If your data is not properly clean and it is not you know relevant to the further analysis and predictive modeling, it is going to your model is going to be a clunky wonky one. It is going to give erroneous results. Once EDA is here, next we move on to model building, which is part of predictive analytics. Remember we talked about it. It depends again on business problem कि आपके client ने आपसे क्या मांगा है. If they are asking for predictions also, they want some future forecast kind of thing also, then we move into this phase. Otherwise, EDA has done the job. EDA में हमने देख लिया उसकी क्या प्रॉब्लम थी और उसके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे हो सकता है. We can go in several details. If prediction is involved, we move on to model building. You will learn several models. You will be learning regression models. नेक्स्ट वीकेंड देख लेंगे, अभी घबराना मत, जस्ट ये बता रहा हूँ कि ये क्या क्या है. देयर विल बी रिग्रेशन मॉडल्स, देन देयर आर ट्री मॉडल्स, and then there is something called linear discriminant. So these are the models you will see in R. You will learn in R itself. Then there are other models which you will move in Python and you will learn it there. These models are KNN, support vector machines,
I think random forest is also there. ठीक है, so there can be several kinds of models. Abhilasha, inferential and predictive. Okay, there is a very thin line between them, but still, I would say that yes, there is difference. Difference in the sense, uh, say inferential is, suppose there has been an election. इतनी पॉपुलेशन ने वोट किया है, मैं सबसे नहीं पूछ सकता जाके, तो आई एम सैम्पलिंग आउट सम पॉपुलेशन और इन लोगों से मैंने पूछा कि हाँ जी किसे वोट देके आए हो, एंड डिपेंडिंग ऑन दैट आई एम इन्फरिंग कि सारी पॉपुलेशन ने किसको वोट दिया होगा. So that's inference. Prediction is something when I am talking about future कि अभी इलेक्शन ही नहीं हुआ है. So that's prediction. Inference is different, that election has already happened. It is just that I don't know. ठीक है? So I am inferring things. I am trying to extrapolate what I observe from a sample of this population. Next step is model evaluation या validation, जो भी बोलो इसको. We try to evaluate, हमने मॉडल बनाया और हम देख रहे हैं कि ये मॉडल काम कैसा कर रहा है. क्या इसके बेसिस पे बिजनेस डिसीजन ले लेने चाहिए? क्या हमारा मॉडल अच्छे प्रेडिक्शंस दे रहा है? अगर वो अच्छे प्रेडिक्शन नहीं दे रहा तो अगेन आइटरेशंस, यू मूव बैक टू ईडीए, बिकॉज आपका मॉडल अभी काम नहीं कर रहा है. जस्ट इफ एवरीथिंग गोज जस्ट फाइन, आपका मॉडल भी ठीक बन गया है, इवेल्यूएशन में आपने देखा कि आपके मॉडल के प्रेडिक्शंस अच्छे आ रहे हैं, आपका मॉडल अच्छा फ्यूचर बताता है, अच्छा फोरकास्ट दे रहा है फ्यूचर के बारे में. We say that model is in the last stage is production. Model is in production now. Production means that model is producing result. We are making business decisions, actual decisions on the basis of this model's prediction. So अभी इनके बारे में ज़्यादा डिटेल बात नहीं करूँगा, बिकॉज ये सब आपने अभी देखा नहीं है. जब मॉडल पे आएंगे तो बात करेंगे. इनफैक्ट अगले क्लास में आ जाएंगे. ठीक है जी, ऑल इन ऑल गुड, यहाँ तक ठीक है. Just give me a quick yes, हाँ everybody. I need you to respond, please. Okay, perfect. Thanks. Okay. Did I send you the sales data? एक सेल्स डेटा करके मैंने एक डेटा सेट शायद भेजा है आप लोगों को. डू यू हैव इट? Okay, okay, very fine. So that's pretty much about this DM. I will send across this file as well. ये मैं नोटपैड फाइल आप लोगों को भेज दे रहा हूँ, जस्ट फॉर योर रेफरेंस. मीनवाइल आप लोग क्या करेंगे? Okay, just DM, very fine. Meanwhile, I want you people to load that sales dataset into R.
And okay. So guys, this is a small data set, एक छोटा सा data set है, and I am leaving you blank this time. I have just mailed you that this TM text file जो अभी मैं नोट करता जा रहा था. I'll send it across to you, everybody. What I want you to do is, you will take 10 minutes at least, take 5 to 10 minutes, समझने का कोशिश करो किस टीएम के अकॉर्डिंग क्या करोगे इस डेटा से. यू गॉट द प्रॉब्लम स्टेटमेंट राइट. जो मैं बोल रहा हूँ ये समझ आ रही है बात, क्या करने का है. कुछ प्रॉब्लम है तो अभी बोलो, ब्लैंक नहीं बैठना. अरे हाँ कि नहीं. हाँ, अगर समझा नहीं है तो बोल दो, मेरे को बता दो. अगर समझ गया है तो ठीक है. मैं कह रहा हूँ वात्सल, आपके पास डेटा सेट है, सेल्स वाला डेटा सेट जो मैंने भेजा था कल आप लोगों को. कल समहाउ आई कुड नॉट कम ऑन टू इट. मैं ये एक्चुअली घर के लिए छोड़ने वाला था, बट मैं अभी देखना चाह रहा हूँ. ये इतना लंबा चौड़ा काम नहीं है. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एनालिसिस कर दो. मैं ये कह रहा हूँ, कैन यू मेक अ ब्रॉड गाइडलाइन इन योर माइंड के करना क्या है. यू हैव द डेटा सेट, किस टीएम के स्टेप्स देखो और समझने का कोशिश करो कि करना क्या है. ठीक है. डेटा सेट पे कीप एन आई ऑन डेटा सेट. और जरा एक कमेंट्स के में भी आर फाइल में कमेंट बना लो या नोटपैड में जरा सीक्वेंस बनाओगे कि क्या क्या आप करने वाले हो. आप, आई डोंट वांट कोड, आई जस्ट वांट सीक्वेंस कि आपका थॉट प्रोसेस क्या होगा. ठीक है जी. सो we can take some 5 minutes, 10 minutes, and maybe 15 minutes if it is required. ठीक है. I am muting myself. Take your time. Try it out. ठीक है. It's some 3:20 by my clock. So I think 15 minutes will suffice, or maybe 10. चलो कर लो, देखते हैं. हाँ जी. What are you up to? What are you people up to? क्या हो पा रहा है? Just drop me off again. As I said, one liner would be best. One word would be rather better. Am I audible? हम्म. क्या आप स्ट्रक्चर कर पा रहे हो, जरा बताएंगे थोड़ा थोड़ा सा. ओके.
ओके, फाइन। तो थोड़ा-थोड़ा सा आइडिया बनने लगा है आप लोगों को? क्या बीमारी है, एसडीएम क्या करता है? डेटा सेट हमारे पास ये था। इट इज़ अ डेटा सेट ऑफ सम हाउ मेनी 200 ऑब्जर्वेशंस। ओके, क्या कर रहे हैं ये? कुछ-कुछ वही कर रहे हैं। ये एग्ज़ाम्पल हमने शायद पहले भी बात किया है इस टाइप का एग्ज़ाम्पल, राइट? कोई कंपनी है देन दे आर रिकॉर्डिंग देयर डेटा कि वो हाँ, मेबी हर मंथ की बात कर रहे होंगे, सीम्स लाइक दैट। समझने में तो ऐसा लग रहा है मंथ ही प्रैक्टिकल हो सकता है, एनुअल तो आई डोंट थिंक। दे आर यू व्हाट दे आर रिकॉर्डिंग कि उन्होंने अपना मार्केटिंग में कुछ बजट टेलीविज़न पे स्पेंड कर दिया, यू नो टीवी चैनल्स को पैसा दिया है ऐड दिखाने का। कुछ न्यूज़पेपर में वो ऐड कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट का, एंड कुछ प्रोडक्ट वो कुछ एडवर्टाइजमेंट एफएम पे भी कर रहे हैं, यू नो। एफएम, इट वाज आउट ऑफ फैशन फॉर वंस, इट हैज raised again from the dead, again very popular. I mean, not, I don't know in COVID situation, but and finally what they are doing, फाइनली दे आर रिकॉर्डिंग के इतना एक्सरसाइज करने से हमने यहाँ भी ऐड किया, वो भी ऐड किया, वो भी ऐड किया, एंड फाइनली दे आर रिकॉर्डिंग कि हमने सेल्स कितना किया। ऐसा था कुछ डेटा है। यू कैन assume it to be yes if you wish, maybe you can assume it to be a soft drink form. uh, tell me one thing, you, uh, yes Watson, Watson, प्रैक्टिकली सोच के देखो ना, अगर मैं सपोज यू आर पेप्सी, तुम यही तो देख सकते हो कि इस महीने हमारी सेल्स इतनी हुई है। तुम्हें ये थोड़ी पता चलेगा कि मैंने ये न्यूज़पेपर में ऐड दिया था इसलिए सेल्स इतनी हुई है। अरे समझ पा रहे हो? तुम्हें ये थोड़ी पता है कि किसने टीवी पे ऐड देख के खरीदा मुझसे, या किसने न्यूज़पेपर में ऐड देख के खरीदा, या किसने एफएम पे ऐड देखा सुना था। आई होप आई एम मेकिंग सेंस। हाँ, सेल्स को कलेक्टिव इफेक्ट नहीं है अभिलाषा, नॉट कलेक्टिव इफेक्ट, इनफैक्ट वही बताना चाह रहा था मैं प्रैक्टिकली। यू कैन नॉट सेग्रीगेट बिटवीन दीज थिंग ना। मैं अलग अलग मीडियम पे ऐड कर रहा हूँ, ये कैसे पता करूंगा कि ये वाली सेल मेरी किस मीडियम ने कराई थी। मेरे पास अगर एक कस्टमर आ गया, मैं सैमसंग हूँ, मुझसे इस कस्टमर ने फ़ोन खरीद लिया, तो मुझे क्या पता वो कौन सा ऐड देख के आया था। क्या वो वाला जो टीवी पे दिया था, या वो वाला जो मैंने यूट्यूब पे छोड़ा था, या वो वाला जो हमने एफएम पे बजाया था, राइट? हाँ। तो सेल्स इज द कलेक्टिव इम्पैक्ट, ऑल टुगेदर सेल्स इतना है। हाँ, बजट हमें पता होता है। तो समझ पा रहे होगे अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है इस आदमी से।
अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है? करेक्ट, ऑब्वियसली। कैन ऑन द बेसिस ऑफ दीज वेरिएबल्स कैन वी प्रेडिक्ट सेल्स? अगर हमें ये पता है कि हम इस पे इतना बजट लगाएं और इस पे इतना बजट लगाएं और इस पे इतना पैसा दें, क्या हमें सेल्स पता चल सकता है कि रफ आइडिया कि सेल्स कितना होने वाला है? क्या हम ये फोरकास्ट दे सकते हैं? द मैटर ऑफ फैक्ट, यस वी कैन। ठीक है। अभी क्रिस्प डीएम में बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, बहुत सारी चीजें, मतलब आई एम नॉट गोइंग इनटू ऑल दैट, बट आई एम टेलिंग यू कि आ क्या क्या जाएगा। वही डेटा क्लीनिंग, सारा पार्ट जो आप देखते हुए आ रहे हो, मिसिंग वैल्यू, इनवैलिड वैल्यू, दिस दैट ब्ला ब्ला ब्ला, यू नो ऑल, यू नो दैट। प्रेडिक्शन तो तुम करोगे, तुम तो मॉडल बनाओगे, तुम्हें तो कोडिंग आती है। विजुअलाइजेशन बना करके देखेंगे आप इन सभी वेरिएबल्स के। जरा बताओगे क्या विजुअलाइजेशन बनाओगे? अगर आपको मैं बोलूं कि बाईवेरिएट एनालिसिस करना है। आई टॉक अबाउट इट अभिलाषा, आई जस्ट टॉक अबाउट इट। कैन यू कैन यू डू अ बाईवेरिएट एनालिसिस एंड assuming that I am not a very tech savvy person? मुझे कैसे दिखाओगे कि टीवी बजट और सेल्स में क्या लेना देना है? टारगेट वेरिएबल समझ आया अभी तक? टारगेट वेरिएबल सेल्स, ऑफ कोर्स सेल्स, वेरिएबल ऑफ माई इंटरेस्ट। हाँ तो बना दो, बना दो। स्कैटर प्लॉट बनाना है, बना दो। जस्ट बनाओ और भेजो मेरे को कोड, कैसे बनाओगे? मैं दिखाता हूँ फिर तुम लोगों ने क्या बनाया है। See, this is the script for you people. Whatever code you write, जो तुम लोग भेजोगे वही लिखूंगा मैं यहाँ पे। देखते हैं किसने क्या बनाया। ड्रॉप योर कोड्स प्लीज, इफ यू कैन मेक अ स्कैटर प्लॉट। ठीक है जी, टर्मिनोलॉजी ध्यान रहेगा ये। टारगेट वर्सेस प्रेडिक्टर्स, इंडिपेंडेंट वर्सेस इंडिपेंडेंट, दोनों ही टर्म्स मिलेंगे आपको देखने के लिए। ओके, वेल, ठीक है। नाउ एज्यूमिंग कि हमने ये सारी चीज़ें कर करा रखी हैं, मेरे पास ये डेटा भी है और ये चीज़ें भी हैं, तो लेट्स कम डाउन टू regression analysis. We are trying to see how two variables are correlated, and if they are correlated, if I can find their correlation, that how they are correlated, maybe I can predict that. It's as simple as that. तो regression analysis में हम क्या कह रहे हैं? Like just this case, TV budget against FM budget, and I am showing you an illustration. So, let's start.
ओके, द वेरी सेम स्टोरी, लगभग जैसे हम देख रहे थे उसी का इलस्ट्रेशन दिखा रहा हूँ आपको। कुछ हम क्या देख रहे हैं, हमारा कुछ मार्केटिंग बजट लगा और उस बजट से कुछ सेल्स हुआ एंड वी आर ट्राइंग टू फिगर आउट इज सेल्स रिलेटेड टू मार्केटिंग समहाउ। ओके, कॉन्टिन्यूस वेरिएबल, कॉन्टिन्यूस वेरिएबल स्कैटर प्लॉट बना लेते हैं अभी जैसा बनाया था। तो ये बना स्कैटर प्लॉट। नाउ थिंक अबाउट इट, ये जैसा भी बना है स्कैटर प्लॉट, इनके बीच में रिलेशन क्या है, ये है, यही तो है। ओवरऑल देखूं तो हाँ, एक ट्रेंड सा तो है, एक ओवरऑल देखूं तो भी एक ट्रेंड नजर आता है। मार्केटिंग बजट के साथ सेल्स थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, लेकिन ठीक है, बढ़ता ही जा रहा है। मेरा काम क्या रह गया, जस्ट इमेजिन, मेरा काम क्या रह गया, वही जो अभी कह रहा था मैं, रिग्रेशन। देखते रहना, नॉट दिस, नॉट इवन दिस, वाई एक्सिस पे सेल्स है मेरा टारगेट वेरिएबल, एक्स एक्सिस पे प्रेडिक्टर है जिसके बेसिस पे प्रेडिक्ट कर लो। अब एक बात बताओ, अगर मेरे को कोई ऐसा रिलेशन मिल जाए दैट y इज समहाउ फंक्शन ऑफ x, अगर तो मैं कोई ऐसा कोरिलेशन फाइंड आउट कर पाया दैट y इज समहाउ फंक्शन ऑफ x, तो प्रेडिक्शन हो गई। अरे प्रेडिक्शन तो हो गई यार, जस्ट इमेजिन अगर मैं y को इस एक्सप्रेशन में लिख रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ, सेल्स इज, ओके, मार्केटिंग बजट का स्क्वायर माइनस 5 times of marketing budget, maybe plus some constant, and maybe take some log of this, और मे भी कुछ भी है, किसी तरह से मैं अगर ये एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर लूँ, इवेंचुअली आई विल एंड, मैं किस बात का कर कहने की कोशिश कर रहा हूँ, दिस सेम थिंग। तो प्रेडिक्शन हो गई। बजट तो यार, बजट तो कंपनी के हाथ की बात होती है, आगे तो मुझे बजट पता होगा। क्या कह रहे हैं सीईओ साहब कि हाँ जी, बजट तो हम इतना रखवाने वाले हैं। एनालिस्ट साहब क्या कहते हो, कितनी सेल्स हो जाएगी, इस फॉर्मूला में रखूंगा, वाई कैलकुलेट करके बता दूंगा कि जी इतना बजट रख लो, सेल्स इतनी हो जाएगी। सिंपल। नाउ कमिंग टू योर क्वेश्चन अभिलाषा, can there be a question that I want to maximize this sales? Yes, there can be a question. Can I answer it now? Yeah, I do have this expression. मैं तो कह रहा हूँ, you want to maximize y. Okay, this is the equation, and maybe I will do some calculus kind of thing, and I'll tell you that when it can be maximum, on what value of marketing budget it will be maximum. बता दूंगा मैं आपको। अब वो तुम्हारे ऊपर है कि अगर मार्केटिंग बजट की वैल्यू इन्फिनिटी आ गई तो लगा लेना। पर काम तो हो सकता है, काम तो होता हुआ दिख रहा है। प्रॉब्लम, प्रॉब्लम, इस कर्व की इक्वेशन क्या है? हाँ जी,
क्या इक्वेशन होगी इस कर्व की? नहीं पता? नहीं पता, बोल दो। दूसरी प्रॉब्लम, अगर गलती से ये पता लग गई, अगर गलती से पता लग गई, तो दिस इक्वेशन आई एम कॉलिंग समथिंग, आई एम टेकिंग अ टेक्निकल एंड प्रॉपर नेम टू इट। मैं क्या कह रहा हूँ? इवन इफ आई फाइंड आउट दिस इक्वेशन, आई एम सेइंग इट इज ओवरफिटेड। ट्रू और फॉल्स? ओवरफिटेड किस चीज को कह रहा हूँ? अरे गिव मी समथिंग जस्ट क्विकली। ओवरफिटेड किस चीज को कह रहा हूँ मैं? पे अटेंशन टू दिस। अभी तक मेरे पास कितने मंथ्स का डेटा था? से जितने भी मंथ्स का था, से मान के चल रहा हूँ इफ दिस वाज फॉर 2 years। अगला डेटा जैसे ही आएगा, अब वो थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ इससे, नया डेटा अगर थोड़ा भी इधर उधर हुआ या ये डेटा चेंज हो गया, यू रियलाइज इट क्या होने वाला है? दिस इक्वेशन इज वेरी मच फिटेड ऑन दीज पर्टिकुलर डेटा पॉइंट्स। इनको ही फिट करने के लिए बनाई गई है, वेरी वेरी पर्टिकुलर। गेटिंग इट? नया डेटा जरा सा भी कुछ डिफरेंट आया, या ये डेटा थोड़ा बहुत भी डिफरेंट चेंज हुआ, फ्यूचर में थोड़ा बहुत भी मेरे इक्वेशंस चेंज हुए, योर दिस इक्वेशन इज गोइंग टू फ्लंक। इसके प्रेडिक्शन गलत हो जाएंगे, इस इक्वेशन के तुरंत गलत हो जाएंगे, क्योंकि बिल्कुल फिट करने की कोशिश कर रहा है। तो दो मेजर प्रॉब्लम नहीं आए आ गई। पहली बात तो इक्वेशन ही नहीं मिल रही, और गलती से अगर मिल गई तो सिर्फ इन डेटा पॉइंट्स के लिए मिल पाएगी। तो व्हाट डू वी डू टू जनरलाइज दिस थिंग? द आइडिया बिहाइंड दिस इज, अभी तक हम रिग्रेशन की बात कर रहे थे। रिग्रेशन में हमने देखा क्या करना चाहिए, इफ आई एस्टेब्लिश वाई एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, काम हो चला हमारा। फिर प्रॉब्लम आई कि इन पर्टिकुलर डेटा पॉइंट्स के लिए फंक्शन कहाँ से लाऊं, और गलती से ले आया तो ओवरफिटेड हो जाएगा। तो व्हाट वी आर डूइंग इज, to solve this problem we are calling, let's not talk about regression, let's talk about linear regression. अगर मैं इन सभी डेटा पॉइंट्स को एग्जैक्टली फिट करने की कोशिश नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ जस्ट द लाइन विच शोज द ट्रेंड विच एक्सप्लेन्स दिस स्कैटर बेस्ट, एक ऐसा लाइन का इक्वेशन मिल जाए मेरे को, पहला काम आसान हुआ मेरा। वो क्या? लाइन का इक्वेशन तो मुझे पता है, मिल गया फंक्शन तुम्हें? सही बात। तो हाउ y इज रिलेटेड टू x, वो फंक्शन तो मिल गया। दूसरे, डू यू थिंक इट इज ओवरफिटेड? No, it is not overfitted because I am taking an assumption. मैं क्या assumption मान के चल रहा हूँ? That since I am not fitting every data point, मैं already मान के चल रहा हूँ कि ये देख रहे हो कि थोड़ा बहुत error ये कर सकती है। I am allowing it. Yeah, right? A reasonable amount of error is permissible. अब इसके होने से क्या हुआ है? Suppose फ्यूचर में डेटा पॉइंट्स कोई यहाँ आया, कोई यहाँ आया, आ जाए। आई एम ऑलरेडी एज्यूमिंग कि मेरे लाइन से कुछ मिस्टेक्स हो रहे होंगे। आई विल कीप एन अटेंशन टू आई कीप माई अटेंशन ओवर दैट। तो ओवर फिटिंग भी नहीं हो रहा, ये भी बात ठीक हुआ। ये भी बात ठीक हुआ।
अ, अच्छा। क्या हो गया? ओवरफ्लो हो गया क्या आज? ओके, ठीक है। लेट्स ब्रेक फॉर सम टाइम। ठीक है, ठीक है। Very fine, people. If you wish, you can break for some time. I forgot that actually it was my break, it was not yours. तो मैंने सोचा क्या ही करना है आज ब्रेक दे। चलो ठीक है, ठीक है। Let's break for a while. So it's 3:57. Let's break till 4:05. ठीक है जी। Okay, fine guys. Okay, so shall we see again? जो आप देख रहे थे, assuming इस बेस्ट फिट लाइन का इक्वेशन आपको पता हो, assuming इस लाइन का इक्वेशन आपको पता हो, कैसे पता हो? सपोज y इज इक्वल टू, जनरल इक्वेशन तो mx प्लस सी होती है। मैं कह रहा हूँ अगर इस तरह से बताओ दैट y इज 5 टाइम्स x एंड से प्लस मे बी 3 समथिंग, कुछ भी। ये कोई ऐसी इक्वेशन है। हाँ जी, प्रिडिक्शन कैसे होगा? अब हो जाएगा प्रिडिक्शन। देखो ऐसे, अगर मेरे को x पता है, वो तो मैं डिसाइड करूंगा। हाँ, क्या बोल रहे हैं मार्केटिंग हेड कि भाई अगले महीने अपना बजट है 200 यूनिट्स लगाने का। वी आर गोइंग टू स्पेंड 200, और इट इज इन लैक्स, ओके, 200 लैक्स ऑफ मनी इन मार्केटिंग बजट। सही बात है, हो गया काम। तुमने अपने इक्वेशन में रख दिया इस वैल्यू को, और क्या बताएगा ये वही बताएगा जो हम प्रेडिक्ट करना चाह रहे थे कि सेल्स कितना होने वाला है। वो लगभग कुछ इतना हो जाने वाला है। कैलकुलेट हो गया। ओके, तो फर्स्ट ठीक सही लग रहा है हमें सारी बातें। प्रिडिक्शन होता हुआ लग तो रहा है हमें। डेटा साइंस, मशीन लर्निंग होती हुई लग रही है। बात आती है जनरल इक्वेशन की। काम कितना रह गया मेरा कि मुझे ये y की इक्वेशन मेरे को मालूम है, इट यूज टू बी mx प्लस सी। कहानी कितनी बात बाकी रह गई? ये m पता लग जाए और ये c पता लग जाए। अगर ये पता लग जाए तो इक्वेशन बन जाएगी मेरे को। चलो पता लगाएंगे। पता तो बाद में लगाएंगे, पहले एक बात बताओ, ये होते कौन है? व्हाट इज m, व्हाट इज c? m इज स्लो, ओके। तो वो क्या होता है? क्या समझूं इस बात से? अच्छा, m इज स्लो।
इज, यस, इंटरसेप्ट बोलते हैं इसको, इंटरसेप्ट या वाई इंटरसेप्ट व्हाटसोएवर, जो भी बोलते हैं। समझो क्या इस बात से, ये बड़े बड़े नाम रख रहे हो तुम इनके, मुझे क्या पता मतलब क्या हुआ इसका, प्रैक्टिकल क्या समझो इसे। यस काइंड ऑफ, नॉट अबाउट द फार्मूला, लेकिन अगर मेरे को प्रैक्टिकली कुछ समझो, देखिए स्लोप हुआ क्या, बेसिकली स्लोप हुआ क्या, इक्वेशन में जो लिखा है वही हुआ। अगर मैं स्लोप डिफाइन करने लगूं किसी को, तो क्या बताऊंगा, स्लोप इज समथिंग, जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक्स में अगर 1 यूनिट का चेंज आया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल में इज चेंज्ड बाय 1 यूनिट, हमने मार्केटिंग बजट 1 लाख रुपया बढ़ाया, तो सेल्स कितना बढ़ेगा, हाउ मेनी यूनिट्स वाई वेरिएबल भी इम्पैक्टेड, दैट्स स्लोप, कुछ भी हो स्लोप बोल। क्या हो गया, नहीं खा रहा टप्पा, मैं कह रहा हूँ ये स्लोप एम क्या होगा, ये वो होगा अगर मैं से इंडिपेंडेंट वेरिएबल में 1 यूनिट चेंज लाऊं, तो डिपेंडेंट वेरिएबल में कितने यूनिट का चेंज आया, जितने यूनिट का चेंज आएगा उसी को स्लोप बोल। मैं कह रहा हूँ इन अदर वर्ड्स, अगर मैंने मार्केटिंग बजट 1 लाख रुपए बढ़ाया है, तो सेल्स मेरी एम यूनिट्स इंक्रीज हो जाएगी, दैट इज स्लोप। इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट क्या होता है, प्रैक्टिकली प्रैक्टिकली बताना, डेफिनेशन डेफिनेशन मत फेंकना मुझे। एग्जैक्टली अभिलाष, परफेक्ट। इंटरसेप्ट में किस चीज को बोल रहा हूँ, अगर एक्स जीरो हो तब वाई कितना होगा, अरे देखा था ना अभी, ये देखा था अभी। क्या कह रहे हैं इसमें, क्या कह रहा है ये इसमें, अगले महीने क्या कह रहे हैं सीईओ साहब, मेरे पास पैसे ही नहीं है मार्केटिंग बजट लगाने के, मार्केटिंग बजट में देने के लिए मेरे पास पैसे ही नहीं है। तो जस्ट इमेजिन अगर ये सैमसंग है या पेप्सी है, जो भी कंपनी है, अगले महीने इन्होंने ऐड करना बंद कर दिया, कुछ तो सेल फिर भी हो जाएगी इनकी, कुछ तो होगी, माना इतनी नहीं होगी, कितनी होगी, कुछ तो होगी। अगर इस लाइन की बात माने तो कहाँ काटेगी ये वाई एक्सिस को, शायद यहाँ कहीं, जहाँ भी काटेगी चलो, उसी की बात कर रहे हैं कि जब एक्स भी जीरो हो गया, तो भी वाई कितना हो सकता है, क्या हो सकता है, हाँ कुछ तो होगा, उसी को बोल रहे हैं सी, इंटरसेप्ट। ठीक है जी, क्लैरिटी इस पे। नाउ दिस इज समथिंग डेटा साइंस काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेशन। अपने डेटा साइंस में हम इसी बात को y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी को, उसे हम इस तरह से लिखते हैं, बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स, वो अभी समझ लेंगे। एम एक्स प्लस सी ही है एक तरह से, बस उसे, हाँ कान वान पकड़ के उसे इधर उधर बैठा दिया, है वही है, वही है।
पहचानने की कोशिश करो। चलिए यहाँ तक। वन क्वेश्चन स्टिल रिमेन्स। लाइन फिट कर रहे थे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, और इस तरह से बीटा नॉट और बीटा वन हो गए कोफिशिएंट्स, एक इंटरसेप्ट हो गया, एक स्लोप हो गया, चलो ठीक है। ये कहाँ से मिलेंगे? लेट्स नॉट वरी अबाउट इट, वो तो आर्ट ला देता है ढूंढ के। प्रॉब्लम कुछ और है। बताऊं, दिखाऊं? आई थिंक समझ आ रही होगी क्या प्रॉब्लम है मेरी। ये जो बेस्ट फिट लाइन थी, हाँ, एक ये है, एक ये है, एक ये है, और मैं तो कह रहा हूँ अभी और भी हैं। एक ये भी तो है, एक ये भी तो है, एक ये भी है, एक ये भी है। आई थिंक यू कैन, हाँ, यू आर गेटिंग द जिस्ट। देयर कैन बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स जो देखने में ऐसी लग रही हैं कि हाँ, ये तो ट्रेंड तो दिखा रही हैं। दे आर एक्सप्लेनिंग दिस स्कैटर, दिस ट्रेंड, दिस रिलेशन बिटवीन मार्केटिंग बजट एंड सेल्स। माई प्रॉब्लम इज विच वन इज, किसको बोलूं बेस्ट फिट है। What will can be the criteria of best fit? Think about it. एक क्राइटेरिया है, एक क्राइटेरिया क्या आता है? वो लाइन जो मैक्सिमम पॉइंट से पास हो जाएगी, वो लाइन बेस्ट फिट लाइन होगी। ये क्राइटेरिया है। मिक्स पॉइंट्स प्लस देखते हैं, जरा बता देना मेरे। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, टारगेट वेरिएबल इधर। दो लाइन दिखा रहा हूँ, दो लाइनें दिखा रहा हूँ आप लोगों को। A line which passes through the maximum points. This is one line. A line which tries to generalize error on both sides. Which one do you think is best fit? किसको बोले बेस्ट फिट? अच्छा, ओके, यू पीपल आर स्प्लिट इन। यार एक तो मुसीबत यह है, तीन चार लोगों के अलावा बोल ही कोई नहीं रहा है। एटलीस्ट हाँ ना सही गलत कुछ तो बोलते रहो। आई थिंक माई ड्राइंग इज कल्प्रिट है। मैं बना नहीं पाया हूँ ठीक से। सी पे अटेंशन, जो मैं अभी इलस्ट्रेशन आपको दिखा रहा था। ऐसा हो सकता है कोई ऐसी लाइन हो जो मैक्सिमम पॉइंट से पास ऑन कर जाएगी। एज्यूमिंग दिस इज दैट लाइन, अगर ये लाइन मैक्सिमम पॉइंट्स को पास आउट कर गई, बट क्या ये बेस्ट फिट लाइन है? मेरा इवेंचुअली गोल क्या था? अब एक क्राइटेरिया मैं बोल रहा हूँ आप लोगों से।
बेस्ट फिट लाइन का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए मेरे हिसाब से, मैं बोल रहा हूँ, बताना मेरे को, डू यू एग्री और नॉट। मैं कह रहा हूँ बेस्ट फिट लाइन का क्राइटेरिया ये होना चाहिए कि ये पॉइंट्स, भाई ये पॉइंट एक्चुअली ये पॉइंट यहाँ पर था, मेरी लाइन जो निकल गई है वो यहाँ से निकल गई, तो ये क्या हो गया, ये डिस्टेंस क्या हो गया, ये मेरी लाइन से एरर हो गया। एक्चुअली सेल्स इतनी हुई थी, मेरे लाइन ने इतनी बोल दी नीचे थोड़ा सा, तो यही तो गलती की है मेरे प्रिडिक्शन में। दिस इज माई एरर, दिस इज द एरर मेड बाय दिस पर्टिकुलर लाइन, दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। मैं कह रहा हूँ लाइन वो बेस्ट फिट होगी जो ऐसी टोटल एरर सबसे कम कर रही हो। अरे पॉइंट से जाए मत जाए, मैं कह रहा हूँ ये एरर सबसे कम हो जाए। है ना, सीम्स लाइकली। स्टैंडर्ड एरर नहीं कहते उसको शेखर। क्यों थक रहे हो टर्मिनोलॉजी में। मैं कह रहा हूँ पीएचडी मत करो, उतनी मैथ सीख लो जितनी जरूरी है, तुम मानोगे नहीं। मुझे फिर इंटरेस्ट आ जाता है, मैं तुम्हारे फ्यूज उड़ा देता हूँ। मैं ढंग से पढ़ा दूंगा फिर मैथ्स, हाँ। चलो मत मानो, आ जाऊंगा, मैं उस पर भी आ जाऊंगा, देखते रहो। चलो जी, और अच्छी बात है। बात हमें समझ आ गई, फंडा हमें समझ आ गया। तो अब हम कहेंगे क्या इसको, टोटल एरर कैसे देखोगे। भाई टोटल एरर कैसे देखोगे, पॉइंट से और प्रिडिक्टेड वैल्यू से डिफरेंस। एक इलस्ट्रेशन दिखा रहा हूँ एक और, फॉर एग्जाम्पल। मैं भी बेस्ट फिट वगैरह कुछ नहीं कह रहा हूँ, मैं बस ये कह रहा हूँ कि एक्चुअल डेटा पॉइंट्स ये हैं, और एक लाइन जा रही है एंड, ठीक है, ये डेटा पॉइंट से मैं देखना चाह रहा हूँ कि इससे एरर कितना कितना हो रहा होगा। तो अगर मैं एक पर्टिकुलर पॉइंट से देखने लगूँ कि इस पॉइंट से मेरे लाइन ने कितना एरर कर दिया है, दिस वन, तो कैसे देखूंगा, वर्टिकल डिस्टेंस, मेरे लाइन ने प्रेडिक्शन यहाँ पे दिया था, एक्चुअल वैल्यू वो थी, इनके बीच में वर्टिकल डिस्टेंस कितना है, यूक्लिडियन डिस्टेंस। आई होप समझ आ रहा होगा। वेरी फाइन। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इसी तरह से, इसी तरह से जहाँ इलस्ट्रेशन में आप देख रहे थे ना, सी व्हाट विल हैपन। अब ये डेटा पॉइंट से हमने क्या किया है, एक्चुअल माइनस प्रेडिक्टेड, डिस्टेंस कितना आया, 3, एरर इतनी थी, एरर इतना ही तो होगा, एक्चुअल माइनस प्रेडिक्टेड, दैट इज माई एरर। प्रॉब्लम क्या होगा, ये पॉइंट कभी ऊपर है, कभी ये पॉइंट नीचे होंगे। यहाँ पर अगर मैं एक्चुअल माइनस प्रेडिक्शन करूंगा तो क्या हो जाएगी वैल्यू, हाँ जी कितनी होगी यहाँ पे, 4 माइनस कितनी आई, 6। सही बात है। तो ये एरर कैसी आएगी, नेगेटिव टाइप की। तो मेरा काम ये नहीं था कि एरर से एरर कैंसिल कर दूं, एक्चुअली ये भी एरर है, मेरे मॉडल ने तो ये भी एरर की है, और ये नेगेटिव में की है, लेकिन एरर तो है, प्रिडिक्शन तो गलत ही दिया है। मेरा पर्पस क्या था कि एरर मिनिमाइज करनी है मेरे को इसकी। तो मैं क्या कह रहा हूँ, इन एरर्स का मैं इस एक्सप्रेशन का, ये जो आ रहा है, इसका स्क्वायर कर दूंगा, मुझे ये प्लस माइनस का झगड़ा नहीं चाहिए। समझ पा रहे हो।
रुको थोड़ा सा क्लीन सा बना देते। तो मैंने क्या कहा, इस पॉइंट से एरर देखी और स्क्वायर कर लिया, फिर इस पॉइंट से भी एरर देखी, उसका स्क्वायर कर लिया, एक्चुअल माइनस प्रेडिक्टेड। ठीक है, और सारे पॉइंट से ऐसे ही ले लेंगे, सारे पॉइंट से, इससे भी देखा, इससे भी देखा, इससे भी देखा, इससे भी, जितने भी डेटा पॉइंट्स थे मेरे, मैंने सबसे इस लाइन का एरर देख लिया और स्क्वायर कर लिया उसका। एंड आई एम कॉलिंग दैट टर्म, आई एम कॉलिंग दैट टर्म, वी कॉल इट SSR या RSS, इधर वे दोनों तरीके होते हैं इसे बोलने के। SSR, आपके एलिमेंट्स कंटेंट में ये SSR की तरह ही लिखा हुआ है। SSR स्टैंड फॉर वही जो किया है हमने, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेसिडुअल्स, वी आर कॉलिंग इट सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेसिडुअल्स। देखो यही तो किया है आप लोगों ने अभी। ये जो एरर कर रहा है लाइन, मैं उसी को रेसिड्यू बोल रहा हूँ, दैट दिस इज रेसिड्यू। है कोई केमिस्ट्री वाला, उसे पता होगा रेसिड्यू होता था कुछ। लैब में, हाँ, धुआं उठाया कभी? राइट, उसी रेसिड्यू की, उसी को बात कर रहे हैं। तो एक तरह से इस लाइन ने क्या रेसिडुअल छोड़ दिया, ये रेसिड्यू ही तो हुआ। जो उसने एरर की है उसी को मैं रेसिड्यू बोल रहा हूँ, जस्ट दैट। तो ये उसने रेसिड्यू छोड़ा, 7-3। मैं कह रहा हूँ इस 7-3 का मेरे को झगड़ा नहीं करना, कभी ये प्लस होगा कभी माइनस होगा, तो मैं स्क्वायर कर रहा हूँ। तो मैंने स्क्वायर कर लिया, तो देखो इतनी बात हो गई, स्क्वायर ऑफ रेसिडुअल्स। और फिर मैंने क्या किया कि ये जितने भी डेटा पॉइंट्स थे, इन सब से जितना जितना ये स्क्वायर होकर रेसिड्यू आया था, उस सबका टोटल कर लिया। ठीक है, तो दिस वन एरर स्क्वायर प्लस दिस एरर स्क्वायर प्लस दिस एरर स्क्वायर, इसी सबको मैं बोल रहा हूँ SSR, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेसिडुअल्स, या RSS भी बोलते हैं कुछ लोग जल्दी से, रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर्स, इधर वे, बोथ आर पॉपुलर टर्म्स। यहाँ तक ठीक? I want you to calculate what is the SSR in this diagram. ये डायग्राम विजिबल है सभी को? 1 2 3 4 5, there are 5 data points. I want you to calculate what will be the SSR here. Increase the entire value. इंक्रीज इसलिए कर रहे हैं अभिलाषा। अच्छा चलो करो करो जरा कैलकुलेट, पहले इस वाले को कैलकुलेट करो, आई होप वैसे ही समझ आ जाए। ठीक है जी, करेक्ट है, आ रहा है सभी से करना। कोई ऐसा तो नहीं है जो ब्लैंक बैठा है कि ये 15.2.5, ये 15.25 कहाँ से आया? हो पा रहा है सबसे? ब्लैंक मत बैठना, ब्लैंक हो गए हो तो बता देना। नाउ अभिलाषा, अब एक चीज ट्राई करो, मैं बोल रहा हूँ तुमसे, दिस टाइम आप रेसिडुअल्स का स्क्वायर मत करो और देखना क्या आता है। इट इज नॉट अंडर रूट ऑफ 15.2, इट इज मिसगाइडिंग वैल्यू। पता है आप क्या करोगे? ये जो एरर थी, पॉजिटिव एरर्स, इनको नेगेटिव एरर से नलीफाई कर दो, अगर स्क्वायर नहीं करोगे तो। ऐसा है थोड़ी, मेरे मॉडल ने पॉजिटिव एरर की थी तो उसने कुछ नेगेटिव एरर भी कर दी हैं, चलो दोनों बात बराबर होगी। अरे बराबर थोड़ी हुई है इस तरह से, ये भी एरर है वो भी एरर है, मेरे प्रेडिक्शन गलत ही हो रहे हैं।
अच्छा, you want to take modulus of the values. Okay. ओके, चलो नेक्स्ट लेक्चर में बात करता हूँ। फिलहाल लेट्स स्टिक टू दिस वन। दिस इज कॉल्ड ओएलएस मेथड, जो हम देख रहे हैं अभी करके। तो लेट्स स्टे विद ओएलएस फॉर नाउ। ओएलएस स्टैंड्स फॉर ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर्स। ठीक है जी। वी आर वॉकिंग डेंजरस ग्राउंड्स हियर, दैट्स ज्योमेट्री पर्टिकुलरली, बट आई होप कि समझ आ रहा होगा। आई एम ट्राइंग टू कीप इट इंटरैक्टिव विद द हेल्प ऑफ दीज illustrations and whatever I could do. हाँ, थोड़ा सा बोरिंग पार्ट होता है, लेकिन आई ट्राई टू कीप इट अलाइव। चलो जी, if there is any further question, I'll stay for another couple minutes. I'm turning off recording for now, but I am here. If there is any question, very welcome.